Rajinder, wonderful to see all of you this very morning. Mhm. I'm unable to read. Light सामने से आ रही है. Sandeep, Ravindra, Smita, Navnath. All of you have joined me on YouTube. Namaste everybody. Welcome to Happy Minds number 1175. आप सबका स्वागत है for this wonderful morning. This is a wintry morning, a very chilly morning here. And I am at a beautiful location in Mulshi, a beautiful resort. I've come here for a function और रात को function चल रहा था. So I thought, where else do I take Happy Minds? और ये location समझ में आई. And here I am next to a beautiful river and sitting on the edge of a small piece of land. And मेरे सामने is the island which is there. And you can see the fog. अगर आपको fog दिख रहा है हल्का सा पानी से उठता हुआ. And there are birds, chirping around. And the chilliness in the weather is beautiful. अरे वाह क्या नजारा है सर. अरे वाह थैंक यू. नजारा आपको भी दिख रहा है. अच्छा बढ़िया. द सन इज गोइंग टू शाइन फ्रॉम देयर. तो जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे शायद मेरी शक्ल जो है या डार्कनेस इधर आएगी और पीछे लाइट ज्यादा रहेगी. बट इट्स ओके. वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके. You enjoyed the bhajan, Naren? Wow, thank you so much for that. Wonderful. It's in fact आज चल रहा था meditation, so I was kind of lost in a way where I didn't want to come out of it. I said continue हो जाए ये bhajan, and I stay in that state. But then that's the way it is. Namaste Tej, Namaste Manisha, Chandramohan, Girish, Prashant. Those of you who log in late, you miss out on the bhajans. You miss out on that time of meditation for yourself. क्यों करते हो यार? For a few minutes, why do you miss out? Namaste Kamlesh, Sandeep, Sumit, and some of you have just missed out. You just whizzed past. So I'll take your names if whenever you type something else. Kailash, Koja, Akshay, Prashant. Great. Those who have joined me for the first time, you can just type in first and you can write in the city you're from. So मुझे मालूम पड़ेगा आप लोग कहाँ से आए हुए. So what is Happy Minds? Happy Minds is a satsang of seekers. So we are all seekers here every Saturday morning. We have seekers who come in from all parts of the country, some from outside the country. और सुबह हर Saturday morning 7 बजे ये seekers आते हैं to seek a better way of living, to seek a better way of doing business, to seek a better way of maintaining relationships, to seek a better way of maintaining health, to seek a better way of communication, to seek a better way of handling themselves in different aspects, emotionally, mentally, physically, intellectually. So we're all seekers who seek a better way of living. And that's how it has been happening over the last almost 26, 27 years, over 1,175 Happy Minds. So this is what it is all about. Ji. चलिए. So what happens in Happy Minds? We have few success stories, and then उसके बाद I share something, and then if people want to share something, they also share. But आज मेरा आपसे कहना है कि this is a beautiful morning here, and एक गांव में भजन कीर्तन चल रहा है. I don't know if my mic is catching that also or not. लेकिन वो रात भर भजन चलता रहा. दो चीज रात भर यहाँ हुई इस बढ़िया सी जगह में. This is Jal Srishti Resort in Mulshi. And this is owned by one of the Chrysalians, Rahul Murkite. बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है इधर. एंड रात भर जब मैं रूम में था, वी केम एक फंक्शन है जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ. एंड अराउंड 12:31 व्हेन आई वाज इन माय रूम, ऐसे अच्छा ये भजन चल रहा है. एकदम पूरा उनकी मंडली बैठती है ना, भजन मंडली, तो रात भर मंदिर में भजन कीर्तन चालू था. आई थॉट अभी ये 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा. देन आई गॉट अप एट 3 o'clock, तो फिर चालू था. लेकिन उनका भजन कीर्तन अभी चालू है. सो व्हाट स्टैमिना, व्हाट इन्वॉल्वमेंट, व्हाट डिसॉल्वमेंट, व्हाट सरेंडरिंग टू देयर डेटी, व्हाटएवर रिस्पेक्टिव डेटी दे आर इन फ्रंट ऑफ. लेकिन दिस इज व्हाट इंडिया इज. कल्चर इज सो वेरी स्ट्रांग, सो वेरी पावरफुल. तो उनका भजन कीर्तन चलते रहेगा. आप लोग मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरे सत्संग पे फोकस करिएगा एंड स्टे विद मी. अच्छा. अच्छा, टेल मी if there's a mismatch or a lag of an audio and video. क्योंकि यहाँ पर हमने अभी ये डोंगल से किया हुआ है. कैन यू गिव मी अ थम्स अप और समथिंग व्हिच
हाँ जी, anybody can give me kind of a all okay, they're saying okay, all okay, great, चलो ठीक है, great. So let's thank you so much everybody, and let's continue on this. So my audio is also very good. ठीक है, thank you, good to go. I want some of you to share your stories, your doings. आपका क्या लाइफ में क्या हो रहा है, any improvements, any implementations of happy minds. मैं शेयर करूंगा जो मुझे शेयर करना है, बट उसके साथ साथ आई वांट इन बिटवीन whatever insights you get, whatever implementations you have been able to do, कहाँ पर लाइफ अच्छी हुई है, कहाँ पर हैप्पी माइंड्स ने कुछ इफेक्ट किया है, कहाँ पर और कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया है, क्या सक्सेस हुआ आपकी लाइफ में, कहाँ पर आप आगे बढ़े हो. I think let's have a round of sharing on that side also. Otherwise, it is week after week I'm sharing, and of course I have to share and I want to share with all of you. But सामने से भी कुछ आता है तो then it kind of gives me that flavor कि अच्छा चलो implementation भी हो रहा है, and lives of people are also on the forward moving path. ठीक है, तो आप लोग you can raise your hand if you want to share something with me, और फिर मैं आपका ऑडियो ऑन कर दूंगा. एंड यू कैन ऑल्सो टाइप इन, जिनको लगता है कि नहीं साहब मुझे ऑडियो में बात नहीं करनी है, यू कैन ऑल्सो टाइप इन. बट आई फील it's wonderful if you can share on the audio. थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग भी हो जाता है विदाउट यू बीइंग ऑन द स्क्रीन, एंड you can speak. थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है, बिकॉज आप जब बोलते हो तो फिर you're using your mind and using your communication process, तो फिर एक फ्लो भी आ जाता है. आई थिंक speaking is better. But if you can't speak, and if you don't want to speak, then you can type and let me know what has been your journey of growth the last few weeks, last few months. So we have Kamlesh who says, I continued inspiration to excel every day, work as many hours as possible. I work 14 to 16 hours. Oh my God, that's nice, Kamlesh. And I believe you are in the education industry, handling young lives in Madhya Pradesh. That's what I know of you last. And you're running this wonderful school there, and you got almost around 400, 500 lives with you, whom you can shape into wonderful human beings. And I think that's what you're doing. And hats off to you for the kind of work you're doing. Continue doing this work, and stay inspired to work many more hours, because इसके लिए जितने भी घंटे दो उतने कम है, right? From my side, a few success stories which I got. मैंने कल ही अपने एक ग्रुप में डाला. We have a 10x group, and मैंने उसमें डाला कि a lot of them got awards over the last few days, and some of the awards were from the Economic Times forum. They got an award, and ऐसे 5-6 हमारे fraternity के entrepreneurs को award मिला. And I said, are these awards only for Chrysalians? Because इतने सारे students मेरे जिनको awards मिला. So congratulations to all of you. I will not be able to name everybody, but all the Mahendra Yadavs of my life, Sanjay Suryavanshis, and Sandeep Koite, सबको जिनको award मिला. So congratulations, and I feel these awards are a must. All of you जो entrepreneurs हैं, जो सुन रहे हैं, जो leadership position में मुझे सुन रहे हैं, maybe this point will kind of ignite something in your mind. We used to have awards in schools. We used to have rewards, recognitions, rankings in school. तो उसका एक pressure अलग होता था. Agreed. I wish we can see people as they are, not based on the rankings, but that's the way the world is. But एक चीज और भी है awards and rewards की, recognitions की, कि कोई भी behavior जो है ना, जब आप उसको recognize करते हो, कोई भी behavior है जिसको आप reward करते हो, कोई भी behavior है जिसको आप kind of accept, acknowledge करते हो, और खुश होते हो उस behavior को लेके, तो आप उस behavior के repeat होने के chances बढ़ा देते हो. So any behavior which is rewarded, recognized, you create a chance for that behavior to be repeated. So your child comes home, and maybe उसने drawing बनाई हुई है, उस drawing में typical जो होता है ना, वो mountain बनाया, river बनाई है, मकान बनाया, and he's maybe 3-4 years of age, और भाग के आता है, and he comes and says, Papa, Mummy, मैंने drawing बनाई है. And you look at a drawing and you pat his back and you say, wow, this is so wonderful. ये तूने जो घर बनाया ना, इतना सुंदर बनाया है. थोड़ा पहाड़ को भी इसको चेंज, थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, but this house is so beautiful. तो आपने उस पूरी पेंटिंग, उस ड्राइंग के अंदर आपने वो चीज देखी जो सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, और आपने उसकी तारीफ करी. It can just be an ordinary drawing,
बट उस ऑर्डिनरी में भी कुछ अच्छा होगा ना, चाहे उसने वो चिड़िया अच्छी बनाई होगी, चाहे उसने वो आसमान अच्छा बनाया होगा, चाहे उसने वो सूरज गोल बना के रेस जो टिपिकल हम लोग स्कूल में बनाते थे वो अच्छा बनाया होगा, कुछ तो अच्छा होगा। और आपने उस अच्छे की तारीफ करी। आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट प्रेज फॉर द सेक ऑफ प्रेजिंग, आपने कुछ अच्छा ढूंढा उसमें। तो आपने कहा ये मकान जो तूने बनाया ना, इसकी खिड़की बड़ी सुंदर बनाई है। और अगर आपने ये उसको अप्रिशिएट कर दिया, मेरे विश्वास करो, जब वो अगली बार वो ड्राइंग बना के लाएगा तो उस ड्राइंग में अगली बार वो खिड़की और अच्छी बनी होगी। Am I right or not? That's the power of a praise. That's the power of an award, of a recognition. तो इस तरह आपकी कंपनीज में यू शुड हैव योर, आई एम श्योर हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लेके आइए। यू ब्रिंग इन सम mechanisms where you have some rewards, some functions, some events happening where your team members जिन्होंने अच्छा काम किया है, किसी भी एरिया में अच्छा काम किया है, they are recognized, and you will see that not only they will repeat the behavior, but there will be many more who would want to repeat that behavior. So you can have monthly rewards, you can have quarterly rewards, you can have annual rewards, but उसमें ध्यान ये रखना कि जो rewards हो रहे हैं, rewards should be on some facts which people can see. It just can't be just given because किसी को motivate करना है। तो वो उस समय के लिए चल जाता है, but in the long run that kind of comes back in bigger proportions in a negative way. लेकिन अगर आपने honestly देखा कि हाँ ये this is something which is good and you recognize that, you will see that thing being repeated. So these guys have got awards and various forums, and so I just thought this is and so many of them are from Chrysalis, from my fraternity. So I thought कि ये सब हमारे ही लोगों को award मिल रहा है क्या? But so nice. This means they're doing some awesome work. So that's one success story. Second one is you can also keep on typing. है ना, अगर आपको लगता है you want to type something, you want to share something, आप मुझे बोल सकते हो. We can have your mic on. आप मुझे, you can just raise your hand up and I will have your mic on there. हाँ, and I'm just checking it out if everything is okay from here. हाँ, तो अगर आपको लगता है आपको कुछ कहना है तो you can raise your hand. ठीक है? Or you can also type. The next one is from Sunil Kundan. He's an HM attendee. He says, "Sir, MG sir, last HM was not an eye opener for me. It was a shake up call for me. I realized that we are missing out on passing the culture to our children. The importance of culture alignment is lacking. Thank you for waking us up, for shaking us up. Thank you so much." I'm happy, Sunil, that we could connect with you on that front. And yes, last HM I was sharing about. Oh, look at those birds. Did you see that? Did you? I think this is beautiful. I'm just seeing on the screen here. I'm sure you must have seen it right behind me. हाँ जी, देखा कुछ नहीं है, सबकी आंखें बंद है, सब अभी मेडिटेशन में ही हूँ. It's chilly, but at the same time, is it on? Nobody is responding. ये किसी को दिख रही है ना चिड़िया उड़िया उड़ती हुई? Hi. Or is it I am the only one who's speaking here and there's nobody on the opposite side? हेलो, अरे दिखा, हाँ हाँ देखा सर, ठीक है ठीक है. अरे तुम लोग जिंदा हो तो उसका निशानी दो ना मुझे. मालूम पड़ा. हाँ, एकदम टकाटक लग रहा है सर. अरे वाह वाह, चलो ठीक है, गुड. सडनली देयर वाज अ बम्बार्डमेंट ऑफ. हमें तो आपके साथ हम तो आपको देख रहे हैं. वाह वाह वाह, खुश कर दो तुम. हाँ, हम आपको देख रहे हैं. वी आर एंजॉयिंग. ग्रेट. यस यस, लाइफ इज ब्यूटीफुल, त्रिवेणी. यस. Okay, great, great. Stay with me. I'm sure nature will bless us with many more such beautiful moments, and that's the beauty of nature. It blesses us. It kind of says, वो बोलते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है. तो जो मिस कर रहे हैं इसको, जो नहीं है, तो दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग. एंड सेम इज अराउंड यू. यू नो, आपके घर के आसपास कुछ तो होगा जो जो बढ़िया होगा नेचर में, which is worth seeing. Anyways, coming back to what Sunil shared with me, that thank you for waking us up, thank you for shaking us up. And I feel that कहीं ना हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतने बिजी हो गए कि कहीं ना कहीं हमने जो चीज इंपॉर्टेंट है उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया. एंड घर के संस्कृति, घर का कल्चर, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट.
तो शायद उसकी इंपॉर्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गई है। मार्क्स की, एजुकेशन की, एक करियर की, एक अच्छी नौकरी की, या एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड होने की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्रिएट हो गई है। आई एम नॉट सेइंग कि वो जरूरी नहीं है, बट कल्चरली वीक सोसाइटी कैन नेवर बी अ लॉन्ग सस्टेनिंग सोसाइटी। A culturally weak society can never be a long sustaining society. And history is the proof कि जहां जहां कल्चर वीक रहा है वो सिविलाइजेशंस निपट गए हैं, और जहां जहां कल्चर स्ट्रांग रहा है उन्होंने मुसीबतों के बावजूद भी वो लोग टिके रहे, वो सिविलाइजेशंस चलती रही हैं, पनपती रही हैं, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर इज हैपेंड। सो इफ यू लुक एट आवर कल्चर, इफ यू लुक एट आवर सिविलाइजेशन, आप उसको इंडस वैली बोलो, इंडियन सिविलाइजेशन बोलो, you know, the kind of invasion we experienced, nobody else experienced in that way. But we did not perish. हम खत्म नहीं हुए, हम टिके रहे, हम अडिग रहे, एंड दैट्स हियर वी आर बिकॉज हमारी संस्कृति बड़ी मजबूत थी। एंड हमने ये पढ़ा, हमने कहीं देखा, लेकिन हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये संस्कृति के बारे में हमारी जो हमारी हिस्ट्री बोलती है, अगर हमारे देश को लेके, हमारी हमारे सिविलाइजेशन को लेके अगर सही है, तो ये हमारे घर को लेके सही क्यों नहीं होगी? कि जिस जिस घर में संस्कृति, जिस जिस घर में कल्चर बड़ा स्ट्रांग रहा है, वो घर फिर वो परिवार क्यों नहीं लॉन्ग सस्टेन करेंगे? जिस कंपनियों में कल्चर बड़ा स्ट्रांग रहा है, वो कंपनियां लंबे समय तक सस्टेन क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि लंबे समय तक जाने के लिए जो रूट्स लगती हैं, those roots are much deeper than the roots of education. They're much deeper than the roots of the outside world. The roots have to be deep into the culture of a family, of a civilization, or of a company. And that's what Sunil is saying, that कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंस हमने कहीं कम दी है। तो जितनी हम पढ़ाई में ध्यान देंगे या हम पढ़ाई में फोकस करेंगे, मैं तो उस कहता हूँ कि उसका 1/10, उसका 20%, 30% तो हमें कल्चर बिल्डिंग पे देना चाहिए अपने घर में। एंड वो कल्चर बिल्डिंग आपने कैसे कराना है वो आपके ऊपर है, बट इट कांट बी लेफ्ट as a surprise for the children. It can't be. Right? I happened to meet one of the Chrysalians a few weeks back, and उनके बच्चे की शादी है, and वो शादी हुई, तो and बात करते करते ना, नहीं बच्चा, my son is not agreeing to any kind of activity, so it will be just a reception, and and the guests are going to come in, and reception hoga, and there's going to be a registrar marriage. I said wonderful. तो फिर बाकी क्या करें? बाकी कुछ नहीं, उसने कहा कुछ नहीं करेंगे। मैं कहा वो बोल रहा है ना कुछ नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ बड़ा इवेंट मत करो, ये रिसेप्शन भी मत करो, किसने कहा रिसेप्शन करने को? लेकिन जो फेरे होने चाहिए तो फेरे होने चाहिए, शादी है, फिर वो अग्नि के परिक्रमा होने चाहिए तो होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मान रहा है। अरे वो नहीं मान रहा है, वो नालायक नहीं मान रहा है, वो उसके ऊपर है। लेकिन आप तो हो ना, यू आर देयर एज पेरेंट्स। आई थिंक ये समवेयर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से नहीं बेटा ये तो होगा, ये शादी है, एंड दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइव्स। तो शायद कहीं ना कहीं उसको क्लैरिटी नहीं, उसकी भी गलती नहीं है, हमने उसको क्लैरिटी नहीं दी कि ये फेरे क्यों हैं, ये क्यों होते हैं, ये अग्नि के चारों तरफ क्यों घूमते हैं, ये मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं, शायद हमें क्लैरिटी नहीं है। तो हमने जब क्लैरिटी नहीं है तो हमने उसको नहीं दी, उसको नहीं दी तो उसके मन में इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं तो वो करना नहीं चाहता। और मैं कहता जब वो नहीं करेगा तो फिर ना उसके आने वाली पीढ़ी करने वाली है। दिस मीन्स योर कल्चर इज गोइंग टू बी लॉस्ट, दिस जनरेशन, एंड इट्स ओवर। एंड देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ तो शंख बज रहा है। there's a beautiful temple here, and शंख बज रहा है। So I'm just saying that कहीं ना कहीं, कहीं ना करते 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 हम ये खो ना जाए हमारे संस्कार। एंड ही वाज काइंड ऑफ मेड टू थिंक, एंड ही सेज हाँ आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा उनको एक बार फोर्स कराओ, जो जरूरी है, एसेंशियल्स है ना, एसेंशियल्स में हमें कभी कभी बच्चों को फोर्स करना पड़ता है। और एक बार उनसे बोलो कि हाँ आप समझो, और समझने के बाद आपको लगता है नहीं करना चाहिए, देन इट्स योर कॉल, वी गिव यू दैट फ्रीडम।
बट आप समझने से पहले इनकार करते हो, ये नहीं चलेगा। पहले समझो तो सही, और उस समझने के लिए आपको समझ के उनको समझाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दे हैव अंडरस्टूड दे डिसाइड नहीं नहीं हमें नहीं करना है, इट्स ओके। सो हाँ जी, वी हैव सम बिग वन। अंकित क्या लिखता है, ड्यूरिंग एचएम 1172 you talked about how smiling and laughing is important to be human in the rigors I became Chintu. ये अंकित का ना फेवरेट वर्ड हो गया, Chintu. So in the rigors I have become Chintu and forgot that I am a human. Thank you for reminding me of the importance of smiling and laughing. And God bless you, Ankit. Love you for sharing this. And so very true. थोड़ा सा हटता हूँ कल्चर से, अगेन गोइंग बैक टू व्हाट अंकित मेंशन, दैट ही सेड इन द रिगर्स ऑफ लाइफ, इन द डेली रनिंग अराउंड, इन द रोज की मारामारी में कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बीइंग जो है चिंटू बन गया था। याद है चिंटू कौन है अपना? हाँ, तो ये we kind of stopped living like a human being. So Chintu was one of the cockroaches जिसका नाम दिया हमने कि only human beings can smile, only human beings can laugh, human beings can feel, human beings can see, can be spontaneous. So I could have been in the room today. I could have taken the happy minds in the room, and you know, we could have been in a. I had seen a few more places. तो एक उनका गेम्स रूम है वो देखा, एक अलग रूम देखा, एंड फिर ऐसा हुआ कि नहीं, दिस इज द प्लेस। और एक और चीज से मैं कनेक्ट करता हूँ आपको। लास्ट एच मैंने बात करी थी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम होना बड़ा जरूरी है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो आप चाहते हो होनी चाहिए, उसके लिए एक पर्याप्त माहौल, एक पर्यावरण, एक एनवायरनमेंट अगर होता है तो वहां पर वो लाइफ हो जाती है। सो अमंगस्ट ऑल द प्लैनेट्स, ये अर्थ में वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हुआ कि यहाँ लाइफ पनप पाई। तो जो चीज आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप घर में हेल्थ चाहते हो, या आप अपनी बॉडी को आप हेल्दी रखना चाहते हो, सो यू गॉट टू आस्क योरसेल्फ व्हाट्स माय इकोसिस्टम। तो मेरे को क्या चाहिए? मुझे ये हेल्थ चाहिए, दिस व्हाट आई वांट। तो ये मुझे ये हेल्थ मेरी पनपनी चाहिए, तो इसके लिए इकोसिस्टम क्या है? तो क्या घर में पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, या घर में लोगों को हेल्थ के बारे में कुछ सोच है, समझ है, कुछ इच्छा है क्या? तो वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा हो गया। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, क्या उनमें से कोई लोग हेल्दी हैं, या किसी को हेल्थ की नहीं पड़ी है? वो भी इकोसिस्टम हो गया। आप कौन से रील्स देखते हो, या आप कौन सा मीडिया कंज्यूम करते हो, उसमें कुछ हेल्थ के बारे में है क्या? क्या आपके सोसाइटी में कहीं जिम है क्या? क्या आपका मॉर्निंग जो आपका जिम का या आपके सोसाइटी के जो लोग मिलते हैं उसमें से कोई हेल्थ कॉन्शियस है क्या? ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा हो गया। एंड द मोर पावरफुल एन इकोसिस्टम यू हैव, द मोर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट थिंग हैपनिंग व्हिच यू वांट। तो अगर मैं कल्चर की बात करूं, तो कल्चर में भी आपको घर में एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि मैं इस जगह में जो बैठा हूं आज, तो वी हैड डिफरेंट ऑप्शंस, आई कुड हैव बीन एनीवेयर, बट मैं यहाँ आया बिकॉज मुझे जगह पसंद आई शाम को जब मैं आया। एंड द सेकंड थिंग वाज, मेरा इकोसिस्टम देखो कैसा है। द ओनर ऑफ दिस रिजॉर्ट, ही इज अ क्रिसेलियन, राहुल। तो कल रात को जब मुझे राहुल मिला, तो राहुल मुझे बोला, सर जो जगह वो आपको दिखाई थी मैंने, वो जगह इज द राइट प्लेस फॉर टेकिंग हैप्पी माइंड्स, और ये जगह जहां मैं बैठा हूँ, याली प्लेस। सो ही रात को 11-12 बजे उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि मुझे यहाँ टेबल सर के लिए चाहिए, सुबह 6 बजे टेबल लगा देना, चेयर लगा देना, लाइट लगा देना, पावर पॉइंट लगा देना, यू नो, एंड इंश्योर करना कि दो लोग मेरे सामने, दो लोग उधर खड़े हुए हैं, दे विल इंश्योर दैट कोई भी इधर ना आ पाए जहां पर मैं हैप्पी माइंड्स दे रहा हूं। एंड कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको आपके सामने मैं बात कर पा रहा हूं विदाउट डिस्टर्बेंस। यू आर एबल टू गेट माई वॉइस, यू आर एबल टू गेट मी, सी मी एंड लिसन टू द एचएम। लेकिन इसके पीछे का इकोसिस्टम कैसा है? कि somebody who understands the importance of happy minds, somebody who knows कि सर के लिए हैप्पी माइंड्स क्या है। वो इंसान को जब मालूम पड़ा कि मैं हैप्पी माइंड्स है कल, तो उसने सारा इंतजाम किया यहाँ पर, एंड उस चक्कर में हैप्पी माइंड्स अच्छे ढंग से हो पा रहा है। दैट्स द पावर ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर हम इनकी जगह, राहुल की जगह कोई और होता, कोई और रिजॉर्ट होता, और मैं उसको बोलता कि मुझे यहाँ पर हैप्पी माइंड्स करने का है, तो उसको पहले समझाने में जान जाती कि ये क्यों करना है। फिर उसको मनाना पड़ता कि भाई तू यहाँ टेबल लगवा दे, रिक्वेस्ट करनी पड़ती। फिर हमें हाथ जोड़ने पड़ते टीम को कि ब्रो बोलो भाई किसी को कि यहाँ पर जो है किसी को आने मत दो। इट वुड हैव बीन सच अ ह्यूज एक्टिविटी फॉर अस, सच ह्यूज एक्टिविटी। लेकिन
Rahul is a Christian, he's aligned with what I'm doing, and it sees, देख कैसा फटाफट सब कुछ हो गया. It just happened. This is what ecosystem is. कि जो हम चाहते हैं, क्या वो चीज हो पा रही है because of the environment around? तो जो आप माहौल घर में चाहते हो, क्या उसका इकोसिस्टम हो रहा है? And that's so very vital, so very important. हाँ जी. तो मैं इनका रिजॉर्ट ही प्रमोट कर देता हूँ. ये जल सृष्टि रिजॉर्ट है. हेमंत, तुमने पूछा है कौन सा है, तो दिस इज जल सृष्टि रिजॉर्ट, एंड दिस इज नियर मुल्शी, एंड राहुल हैज गॉट टू प्रॉपर्टीज. वन इज मल्हार माची, ये भी उनकी प्रॉपर्टी है, और ये जल सृष्टि भी उनकी प्रॉपर्टी. इट्स अ ब्यूटीफुल. बट यहाँ पर कोई हंगामा नहीं, कोई डिंग चांग नहीं. जिसको सिर्फ नेचर के बीच में आना है, एक क्वाइट समय बिताना है, एक सॉलिट्यूड में समय बिताना है खुद के साथ, ये जगह उसके लिए है. This is not for the ones who want to have some party and some music and some masti and some ऐसा उनके लिए नहीं है. हाँ जी. सर आप कहाँ हो सुंदर? अरे यार मैं बता दिया ना. Okay. So this is what I had shared last HM, and you can also type in if you want to take your hand up. You can let me know. And sir, what is the exact meaning of culture? What culture meaning is in personal? What culture means in our personal life? What is the exact meaning of culture? What's the exact meaning of culture? Okay. मेरा चेहरा जो है ना बहुत डार्क हो गया बिकॉज ऑफ पूरा पीछे. एनीवेज इट्स ओके, आज ऐसे ही सही. कल्चर मतलब, okay, let me put it across to everybody also. Let's hear from what everybody has to say about this question. आप लोगों के हिसाब से ये मुझे एक क्वेश्चन आया है कि सर कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर मुझे कहा है, तो आप लोगों के हिसाब से कल्चर क्या है? टाइप एंड मे बी यू कैन शेयर और यू कैन टाइप. तो आपसे सुनते हैं कि आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कल्चर फॉर यू. तो देन आई विल बिल्ड अप ऑन दैट. फिर मैं भी आपसे शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से क्या है. ऋषि से सर वी लव यू बिकॉज यू आर ओरिजिनल स्पॉन्टेनियस. अरे वाह वाह, क्या बात है, खुश कर दिया ऋषि तूने. आई लव यू टू. आई लव यू टू. हाँ जी. सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट एज पर यू इज कल्चर? चलो फटाफट टाइप करो, मुझे बताओ. हम्म संस्कृति. ओ थैंक यू सो मच, इन्होंने उसका बड़ा अच्छा अनुवाद किया है कल्चर का हिंदी में, और उन्होंने कहा संस्कृति है. थैंक यू, थैंक यू. It's a wooden platform which I'm sitting on, and मैं हल्का सा हिलता हूँ तो पूरा प्लेटफॉर्म हिलता है, तो हल्का सा वाइब्रेशन आता है उसमें कैमरे में. सो डोंट वरी अबाउट इट. कल्चर इज डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लिविंग. ठीक है, बढ़िया, थैंक यू गणेश. सही जीवन शैली. ठीक है. रिचुअल्स. रिचुअल इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, दिस इज नॉट कल्चर. रहन सहन. ओके, ठीक है. कल्चर इज वे ऑफ बिहेवियर इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग with values and ethics. Okay, good. Set of practices designed for betterment of life. जीवन पद्धति, अच्छी चीजें जो सदियों से आ रही हैं. Okay, it's a way of life that the society has accepted over a long period of time. Okay, culture are roots of life, something we build and we bring and we take forward. Culture for me is everyone do repeatedly same thing without monitoring. ये है बिल्कुल entrepreneurial आंसर. सिस्टमैटिकली फॉलो अप एंड नो साइड इफेक्ट्स. ठीक है, बढ़िया. ठीक है, कीप देम कमिंग द वे वी रिस्पॉन्ड. ओके, ठीक है. सी देयर इज, आप टाइप करते रहना और मुझे सुनते भी रहना. कल्चर इज पिलर्स ऑफ आवर हाउस बिल्डिंग नॉलेज एक्सीलेंस अचीवमेंट. ठीक है.
इट्स चिली. ओके, कल्चर क्या है? कल्चर इज, मेरे हिसाब से, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर इज, इज नॉट, कल्चर इज नाइदर गुड नॉर बैड. कल्चर इज कल्चर. तो कल्चर क्या है? कल्चर एक, इट कम्स फ्रॉम अ सेट ऑफ बिहेवियर्स व्हिच वी हैव विद अस. और हम बोलते हैं कि भाई इस घर का कल्चर ऐसा है, या इस कंपनी का कल्चर ऐसा है. इट डजंट कम फ्रॉम the fact that it's a good culture or it's a bad culture. It's just culture. Culture means उसका सामूहिक, एक घर का सामूहिक बिहेवियर कैसा है. तो ये कल्चर, इस घर का कल्चर ऐसा है कि साहब ये सब लोग जो है खाना खाते हुए हैं तो टीवी देखते हैं, तो इनका कल्चर है. इस घर का कल्चर है कि यहाँ लोग झूठ बोलते हैं. किसी को लगता भी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं. तो बाप है वो भी झूठ बोल रहा है, बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं. तो ये इसका घर का कल्चर है कि ये चलता है इनके यहाँ झूठ बोलना. राइट. इस कंपनी का कल्चर है कि लोग कभी भी आते हैं, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कोई वो नहीं है कि टाइम पे आना है, डिसिप्लिन नहीं है. तो ये कंपनी का कल्चर है. इसका उल्टा भी हो सकता है कि इस घर में जो है जो बच्चे रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं, द कल्चर इज दैट दे रिस्पेक्ट देयर वर्ड. तो सब लोग अपने अपनी जबान की बड़ी कीमत रखते हैं. नोबडी टेल्स अ लाई. अगर नहीं होता तो नहीं करते. इस घर का कल्चर है कि यहाँ पर बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है. इस कंपनी का कल्चर है कि दे डिलीवर व्हाट दे प्रॉमिस. राइट. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 100 लोगों में से ज्यादातर लोग एक तरह का बिहेवियर एग्जीक्यूट या एग्जिबिट करते हैं. तो जब वो बिहेवियर बार बार होता है वो बिहेवियर, और जो लोग उस बिहेवियर को एक्सपीरियंस करते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि ये कल्चर क्या है. वो बोलते हैं यार इनका कल्चर तो ऐसा है. तो अगर एक कंपनी कोई प्रोडक्ट दे रही है किसी कस्टमर को, और वो प्रोडक्ट को देते समय वो डिलीवरी लेट करती है, एक बार नहीं करती, 2 बार 3 बार, हर बार डिलीवरी लेट होती है उनकी, तो कस्टमर बोलता है यार इनका कल्चर है कि ये अपनी जुबान की कीमत नहीं रखते, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, या इनके यहाँ से कभी भी सामान टाइम पे नहीं आता है. ये ऐसा कस्टमर उनके बारे में ओपिनियन एक रखता है, धारणा रखता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द बिहेवियर which majority of the people in the company are exhibiting. Right. So this is what culture is. So culture is neither bad, culture is neither good. Culture is just a behavior which comes out from within us. And ऐसे अगर 5 6 10 लोग रह रहे हैं साथ में, तो सामूहिक जो कलेक्टिव उनका बिहेवियर क्या है, that defines the culture of the entire group. If it's a family, that defines the culture of the entire family. If it's a society, it defines the culture of the society. If it's a civilization, it defines the culture of the civilization. For example, जब पहले हमारे यहाँ युद्ध होते थे, ऐसे नहीं कि युद्ध नहीं होते थे, वॉर्स नहीं होते थे, तो पहले हमारा जो वॉर होते थे, वॉर कैसे होते थे? जैसे मैंने बोला शंख बजा, तो हमारे यहाँ शंख बजता था तो युद्ध शुरू होता था. ये कल्चर था. और शंख बजता था शाम को सूर्य अस्त पे, तो इसका मतलब युद्ध विराम. इसका मतलब क्या है? युद्ध विराम हो गया तो कल्चर था कि अब आप जाइए. अभी तक हम दुश्मन थे, हम लड़ रहे थे, हम एक दूसरे की जान ले रहे थे, खून के प्यासे थे, लेकिन अभी शंख बज चुका है ना, तो फिर मैं भी जाऊंगा अपने घायलों को लेने के लिए, आप भी चाहिए अपने घायलों को लेने के लिए. और शायद मैं आपकी मदद करूंगा आपके घायल को देने में, आपको, आप मेरी मदद करोगे मुझे मेरे घायलों को देने में. और ऐसा युद्ध विराम हो गया. इसका मतलब अभी मुझे आपसे कोई खतरा नहीं है, ना ही मुझे आपको मुझसे कोई खतरा है. ये हमारा कल्चर थी, हमारी संस्कृति. इसका मतलब क्या है? हम जितने लोग युद्ध में जा रहे थे, सब इसी तरह से आचरण कर रहे थे. ये उनका बिहेवियर था. फिर जब इन्वेजन चालू हुए, और हमारे जितने क्षत्रिय थे, हमारे जितने योद्धा थे, वो तो अपने संस्कृति से लड़ने जाते थे. तो जब इन्वेजन हुए और जब ये मिडिल ईस्ट से आए, तो उनका तो कोई कल्चर नहीं है, बारबरिक थे. तो उनका कोई शंख नहीं, कोई कुछ नहीं, हम तो कभी भी आक्रमण करेंगे, रात को करेंगे, सुबह करेंगे, एंड दैट्स वे इट वाज. तो जो हमारा जो कल्चर था, दैट बच्चे और लेडीज को, फीमेल्स को हम टच नहीं करेंगे. विल फाइट मैन टू मैन. बट जब वो आक्रमण, जितने इन्वेडर्स आए, दे हैड नो सच कल्चर. वो वहां से, अपने वहां से आए थे, उनका वहां का सोच, वहां का जीने का तरीका था. So that's how it is. So if you understand what culture is nothing else but a behavior which comes out from a person most of the times. And if it's a group,
what's the behavior which comes out from that group most of the times, and that defines the culture of that group, the culture of the family, the culture of that country. It is neither good or bad, it is just there, the culture is there. So वो कल्चर फिर क्या होता है, वो फाउंडेशन बन जाता है, वो पिलर्स बन जाते हैं हमारे, वो हमारे उस पे हमारी जिंदगी की बिल्डिंग बनती रहती है. That's how it is. आपने क्या लिखा है? कल्चर इज सिस्टम ऑफ लिविंग, कल्चर इज पॉजिटिविटी, कल्चर इज अ वे ऑफ लिविंग, देन was provided by earlier generations. Absolutely. तो फिर हम क्या होता है, कल्चर पिकअप करते हैं फ्रॉम आवर फैमिलीज, फ्रॉम आवर एल्डर्स. उन्होंने जैसे जिया है, हम उसमें से कुछ बातें पिकअप कर लेते हैं. बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग ऑल दैट. मैं सब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं कुछ ही पढ़ पा रहा हूँ. कल्चर सेट ऑफ रूल्स, वैल्यूज, बिहेवियर दैट वी फॉलो. एब्सोल्युटली. नो वॉइस. अरे किसको वॉइस नहीं आ रही मेरी? बीच बीच में कहां से आया? नो वॉइस. कल्चर इज गुड कंपेयर टू आउटसाइडर्स. उनको लगता है उनका कल्चर अच्छा है. तो मेरा ऐसा कहना है कि इट्स नॉट अबाउट कि हमारा कल्चर अच्छा है या उनका अच्छा नहीं है. मेरा ये कहना है कि हम समझदार हैं. हम समझदार हैं कि कल्चर कौन सा बढ़िया होना चाहिए, मतलब हमारे लिए क्या अच्छा होना चाहिए. सो व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट बिहेवियर will give us a better life, right? I think उसको होल्ड कर सकते हैं. Fortunately for us, उसमें कोई घमंड की बात नहीं है. But I'm just saying fortunately for us, हमारे जो ancestors हैं, जो हजारों साल से जिन्होंने जिंदगी जी है, उन ancestors ने जिंदगी को पढ़ा. तो fortunately for us, जो हमारे शास्त्र, हमारे जितने भी ग्रंथ आए हैं, they have come from study. They have not come from a gospel truth, right? Fortunately for us, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है. वो फॉर्चुनेटली हमारी सभ्यता ऐसी हो गई कि उन्होंने हर एस्पेक्ट को, लाइफ के हर एस्पेक्ट को पढ़ा और उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया. एंड दैट इज व्हाई वी हैव नो वन ऑथर ऑफ अ बुक. वी हैव thousands and thousands of authors. We have lakhs and lakhs of authors. तो हर कोई हर कोई ऋषि मुनि जिन्होंने जिंदगी जी, जिन्होंने तपस्या करी, जिन्होंने उस चीज को पढ़ा, उन्होंने उसमें ऐड ऑन किया. तो किसी ने वॉर के बारे में सीखा या पढ़ा, तो उन्होंने वॉर के बारे में लिखा, युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए. किसी ने शरीर के बारे में पढ़ा कि ये बॉडी कैसी है, तो उन्होंने आयुर्वेदा के बारे में उन्होंने लिखा. किसी ने आकाश को देखा, चांद सितारों को देखा, उन्होंने कहा चलो लेट्स, ये क्या चीज है, उन्होंने उसके बारे में लिखा. तो किसी ने पूरे ब्रह्मांड के ऊपर लिखा. तो देयर आर पीपल फ्रॉम द पास्ट जिन्होंने लिखा. वो वेद के रूप में आए, पुराण के रूप में आए, and then people lived their lives based on that, and that's how history, इतिहास बन गया महाभारत का, रामायण का. ये इतिहास है. It's not a myth. ये एक शब्द निकाल दो अपनी जुबान से, it's a mythology. It's not a mythology. कहीं पर भी ये लिखा हुआ है, कहीं पर भी ऐसा है, ये सब गलत चीजें लिखी गई. It's not a myth. It's history. It's history. And history has been spoken in तो हमारे इंडिया में कैसा था कि written history was not that much there available. But हमारे यहाँ बोली वाली हिस्ट्री थी. People would speak, and that's how history has been transferred from generations to generations. It was not that well documented, but history तो थी. So it's not a myth. ये कल्पना नहीं है कि ये myth है. It's history. So there have been so many authors. And the beauty of that, last session, if you remember, मैंने कहा था कि we all have freedom. And the freedom is कि हम भी author बन सकते हैं और हम भी अपने मरने से पहले कुछ ऐड करके जा सकते हैं in our culture. Isn't it wonderful? कि आजादी है कि हम, we are not bound to live in a certain way. कि हम ऐसे जीना, ऐसा नहीं है. हमारे पास आजादी है कि हम उसको अपने हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन इस आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना पकड़े. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. आजादी का मतलब ये नहीं कि आपने शादी करी लेकिन आप शादी के जो इंपॉर्टेंस आप उसको समझ नहीं रहे हो कि दो लोग मिल रहे हैं. इट्स सच अ ग्रेट मोमेंट. इन फैक्ट इन एवरी कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड, marriage is such a very powerful thing.
two human beings coming together, two souls coming together, and they're not coming together for a day or a week. They're coming there together, not for this life. They're coming together for generations, because उसके बाद generations होंगी. It is so important. और वो इस important event को आप importance ही दे रहे नहीं है, उससे आप एक साइन पे कर दोगे, आप उसकी समझ को मजबूत नहीं करोगे. तो ये this is where the weakness of the elders is, that they have not been able to kind of hold on to certain things which are important. तो हर परिवार में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए, where children have no right to negotiate and say ये मैं नहीं करूंगा. ना ना, ये तो करना ही है. हर कंपनी में कुछ 4-5 चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसमें कंपनी के जो टीम मेंबर्स हैं, दे हैव नो राइट टू से मैं करूंगा नहीं करूंगा. वो तो करनी है, नॉन नेगोशिएबल है. और उन नॉन नेगोशिएबल्स में से आपका बिहेवियर जब निकलता है, वो कल्चर बन जाता है. तो हर परिवार ने, हर माँ बाप ने अपने घर के कुछ 4-5 उसूल, 4-5 नॉन नेगोशिएबल्स उन्होंने करने चाहिए कि हमारे घर में देखो ये चीजें होनी है, ये 4-5 चीज तो होनी है हमारे घर में, एंड दैट शुड बिकम नॉन नेगोशिएबल. और जब बच्चे उस नॉन नेगोशिएबल एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, उन 4-5 चीजों में, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज कल्चर. एंड आई एम सेइंग बी गोना बी टफ. यू कांट बी लाइट एंड लूज एंड रिलैक्स्ड ऑन दैट कि हाँ बेटा ठीक है, तुम्हें लगता है तो करो, मत नहीं लगता मत करो. ना ना ना, जब तक मेरे घर में हो, जब तक मेरे साथ रह रहे हो, ये 3-4 चीज तो करनी है. दैट्स द वे इट इज. जब तुम जब बड़े हो जाओगे, अपने घर में जाओगे, अपना घर बनाओगे, यू आर फ्री टू अपहोल्ड दिस और नॉट अपहोल्ड दिस. यू आर फ्री, बट राइट नाउ यू आर नॉट फ्री. ये 4-5 चीज तो आपको करनी पड़ेगी. एंड दैट is how the culture is formed in any family or any organization. लेकिन आपको उसको strongly करना पड़ेगा. For example, I've shared this many times in the past. When I leave home and my parents are at home, तो मैं उनके पैर छू के ही निकलता हूँ घर से बाहर. और जब मैं घर आता हूँ, तो अगर वो घर में होते हैं तो उनके पैर छू के उनको मिलता हूँ. That's the way it is. उसमें नेगोशिएशन नहीं है, उसमें कुछ भाई डिस्काउंट है, नहीं डिस्काउंट नहीं है, वो ऐसे ही है. And it has become part of our lives, and that's the way it is. And that's what my children also do. When they are leaving, they touch the feet. When they coming back, when they come back, they touch the feet. उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया, हम हग भी करते. जब हम छोटे थे तो हगिंग नहीं था हमारे घर में. जब हम बड़े हुए तो हमने हगिंग चालू किया. लेकिन हगिंग के साथ हमने पैर छूना बंद नहीं कर दिया. वो तो है चालू, क्योंकि वो मैंने अपहोल्ड किया है. और वो अपहोल्ड किया तो फिर वो बच्चों ने देखा कि अपहोल्ड किया. मैंने कहा जब तुम मेरे साथ हो तो ये तो करना पड़ेगा. तुम जब अपने बच्चों के साथ करोगे डीलिंग, यू डिसाइड हाउ दे हैव टू बिहेव विद यू, बट विद मी दिस इज द वे इट इज. यू देयर विद मी ऑन दिस? हेलो हेलो हेलो, पढ़ने में नहीं आ रहा. हाँ जी. तो मेरा आप सबसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है आप सबसे, कि अपने जितना भी आप मॉडर्नाइजेशन कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी गुड. You get the best of gadgets, you have the best of education, but ensure your children, they are deep rooted in certain fundamentals of our culture. Certain fundamentals of a culture. कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होने चाहिए, 2-4 फेस्टिवल ऐसे होने चाहिए, या 2-3 या 2 फेस्टिवल तो ऐसे होने चाहिए साल में, कि बच्चे कहीं भी हो दुनिया भर में, for those 2 festivals they got to come back home. That's the way it is. Right? आप कितने भी बिजी हो, कितना भी आप कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हो, कितना भी आप अपने बिजनेस में, अपने काम में अटके हो, कहाँ जॉब में अटके हो, बट जब कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, तो घर में कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए. दैट्स द वे इट शुड बी. सो देयर यू डिसाइड आपको कल्चर में कौन से पार्ट्स को उठाना है. इट कैन बी फ्रॉम द रिस्पेक्ट साइड, इट कैन बी फ्रॉम द रिलीजन साइड, इट कैन बी फ्रॉम सम सोसाइटी साइड. आप डिसाइड करो. राइट, इट कैन बी हेल्दी लिविंग स्टाइल साइड ऑल्सो. तो कल्चर के बहुत सारे रूप हो सकते हैं. आपके ऊपर है आपने कौन से पार्ट को पिकअप करना है. Touching feet is our Indian culture, but after a certain age, children don't follow
और चैलेंज टू फॉलो, समटाइम्स पेरेंट्स गिव्स देम डिस्काउंट। तो वही है ना, डिस्काउंट दिया ना आपने। देखिए अगर बच्चा जो है बचपन से लेके अगर 12 साल तक उसने, मैं आपसे कह रहा हूँ 12 साल छोड़ो, अगर उसने 7-8 साल तक भी अगर उसने वो किया, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हर लाइफ, इट विल नॉट गो अवे। आप डिस्काउंट दो सब चीजों में उसको, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स में डिस्काउंट नहीं देना है, नहीं देना तो नहीं देना है। तो इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर, वही बच्चे वही तो सीखेंगे, वही तो आगे लेके जाएंगे। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू टेक फ्रॉम यू? इज इट द प्रॉपर्टीज यू वांट देम टू टेक फ्रॉम यू? इज इट द बैंक बैलेंस यू वांट देम टू टेक फ्रॉम यू? Is it the shares and equity and mutual funds you want them to take from you? That's what you want them to inherit from you? Or is it, along with this, you want them to inherit a very strong culture? क्योंकि अगर आपने कल्चर दिया ना, वही उनका है, बाकी सब तो ये निकल सकता है। प्रॉपर्टीज कैन गो, मनी कैन बी लॉस्ट, यू नो, ही कैन गैम्बल इट। आपने उसको, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दिस, द प्रिंस कॉल्ड दिलीप सिंह, एंड I was reading about this prince called Dilip Singh. In 1930s, he had the wealth. He was settled in UK. UK चले गया वो इंडिया छोड़ के, and उनके पास इतना पैसा था, he could have bought from his ancestry. He had so much of money, but he lost everything in the next 15-20 years. तो आपके पास कितना भी पैसा होना है तो सब जा सकता है, मकान जा सकते हैं, ज्यादा जा सकती है, लेकिन आपने अगर कल्चर दे दिया ना, द कल्चर इज व्हाट स्टेज विद देम, दैट इज व्हाट स्टेज विद देम। तो मुझे लगता है कि ये एरिया में, ये कॉल आपका है कि आपने किस एरिया में ज्यादा फोकस करना है। सो चंद्रमोहन, गणेश, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से टू यू गणेश, कि ये तो आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, सन जो है वहां सामने से आ रहा है। कुछ और क्वेश्चन है बेटा? हाँ हाँ, मैं तो से टर्न करूँ, मैं, आई हैव टर्न डार्क। Just give me some time. ओहो, हाँ, अभी कैसा लग रहा हूँ मैं? अभी ठीक लग रहा हूँ मैं? अभी दिस साइड इज ब्राइट। ठीक है, चलो, आई थिंक दिस इज अ बिट लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ एचएम। हाँ जी, चलो, आई कैन आल्सो सी द स्क्रीन नाउ, थोड़ा बहुत मुझे स्क्रीन दिख रहा है, मुझे पहले स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था, पूरा डार्क हो रहा था। हाँ, सो आज का जो एचएम था, इट्स अ एड ऑन टू दैट। ओ, हैंडसम लग रहा हूँ, वाह। आज ये ऋषि, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, टेल मी, खूबसूरत। फोटोजेनिक, क्या बात है, दिस सिनेरियो बिहाइंड इज फोटोजेनिक। देखो मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊं कि ये देखो, दिस इज द रिजॉर्ट जी, हम ऐसे बैठा एचएम ले रहा था, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी देयर, देखो, हाँ हाँ। सो दिस इज, तो ये वापस आप आ गए मेरे चेहरे पे। सो दिस इज द प्लेस विच, तो मैं एचएम मैंने कहाँ कहाँ से ले लिया, मैंने different places across the country, outside the country, on the street, you know, in the lawns, कहाँ कहाँ से एचएम लिए, तो ये भी एक और एचएम का बन गया। So all of us including kids would, ये क्या लिखा है, but nowadays, okay, kids rebel and don't follow। अरे रिबेल कोई नहीं करता है यार, तुम लोग, यू हैव टू फाइंड वेज बाय व्हिच यू कैन कम्युनिकेट टू द किड्स। बच्चे सुनने को तैयार हैं, उनको समझाने के तरीके बदलने पड़ेंगे। Now you want to talk to them the way your parents spoke with you. That's not the way they will listen to it. Children don't, they're not against culture. They're not against the norms which we have. हमारे बताने के तरीके, हमारा उनसे कम्युनिकेट करने के तरीके, वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। हम वो चेंज ही नहीं कर रहे, हमें पड़ी नहीं है उसको चेंज करने की। वी हैव जस्ट ओनली वन वे, या तो फोर्स में करेंगे, करो फोर्सफुली। हम ना समझाते हैं क्योंकि हमें समझना नहीं है।
आप में से कितने लोग हैं, कभी आपने अपने बच्चों को बताया कि जो फेरे लेते हैं ये 7 फेरे लेते हैं, कुछ में 4 फेरे लेते हैं, ये फेरे क्यों लेते हैं? कभी आपने सोचा, आपने बच्चों को बताया एज ए ग्रोइंग अप कि बेटा ये हमने फेरे, वो कितनी शादियों में वो भी गए हैं, आप उनको भी लेके गए, आप भी गए हो, लेकिन कभी आपने बताया अपने बच्चों को व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फेराज? कि खाना खाने से पहले हम हाथ जोड़ते हैं, क्यों करते हैं, हाथ क्यों जोड़ते हैं, अन्न को हाथ क्यों जोड़ते हैं? कभी बताया आपने उनको? कभी बताया कि आप भाई बड़े बुजुर्गों के पैर क्यों छूते हैं? कभी आपने 1 मिनट उसमें हल्का इन्वेस्ट किया टाइम उनको समझाने में? आपने ऑर्डर किया, टच फीट, पैर छुओ, शाली ऐसे करो, नहीं वैसा करो। अरे क्यों करेगा बच्चा? आजकल के बच्चे दे दे वांट टू बी एक्सप्लेन्ड एंड दे आर ओपन फॉर लिसनिंग इफ यू एक्सप्लेन देम इन अ बेटर वे। इनफैक्ट वो जब हम छोटे थे और आज के बच्चे हैं, these kids are far ahead. This means they are more capable of listening, understanding, more capable of holding on. लेकिन हम नहीं बता पा रहे हैं उनको, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते अपने तरीके। That's where the problem is. The problem is not with the kids. I would not buy that. हाँ जी। So, hmm, so is it, अब ये क्या जगह है, ये क्या जगह है दोस्तों? गणेश आया पकड़ में। So let's not put the entire onus on the kids. Let's not say that the kids are the reason for that. हमने नहीं समझा है। तो all of you are married, हाँ, all of you have kids. इस हफ्ते का असाइनमेंट ले लो, पढ़ो इस हफ्ते that ये फेरे क्यों लगाए जाते, पढ़ो। एंड उसको सिंपल भाषा में, जो आपके बच्चे की एज है उसको समझाने के लिए उतनी सिंपल भाषा में उसका अनुवाद करो और उसको बताओ। एक काम करके देखो, और एनी एस्पेक्ट ऑफ योर कल्चर विच यू फील द किड्स शुड हैव इट, उसको आप पढ़ो ना, अपनी समझ को डेवलप करो, उसको समझाओ, उसको बोलते को समझ में आ जाए ना, उसके बाद तेरे को ड्रॉप करना ड्रॉप कर, लेकिन बिना समझे ड्रॉप मत कर। ये मंदिर क्यों जाना है, पहले समझो कि मंदिर क्यों जाते हैं। आप ही लोगों ने मंदिर जाने का कार्यक्रम इतना तुच्छ कर दिया है ना, यू गो लाइक बेगर्स, भिखारी की माफिक जाती। एक जो बाहर बैठा होता है भिखारी मंदिर के, एक जो भिखारी अंदर जाता है, भगवान से दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। अरे व्हाई डू यू गो टू टेंपल्स? You have, on your own, you have killed the bloody essence of going to a temple. Temples were never a place for worshipping. Temples were never a place for begging. They were energy centers, and they are energy centers. You go and you sit there and you just gain energy. Just like early in the morning, you go to, you charge your mobile and you use the mobile throughout the day. In the same way, in villages, in old times, even now, and if you go to see, so many people are there, they never go to the workplace without going to a temple. तो अपने ऑफिस जाएंगे तो पहले मंदिर से होते हुए ऑफिस जाएंगे। You go to Mumbai, local trains में लोग निकलते हैं, and there's so many of them I see that they go to a temple, then they go to the workplace. उन्होंने अपने अपनी जगह बना के रखी हुई है। It's energy centers. They are not going there to beg and to ask God, भगवान आज ये डील करा दे, भगवान आज वो करा दे। ये हम लोगों ने ही उसका बैंड जाकर रखा हुआ है, और बच्चे कहते हैं हमें नहीं जाना इसलिए मंदिर। But if you would tell them, these are places where you can just get your energy. This is the places where you can connect with the higher. लेकिन सब हम नहीं बताते। हम 4 धाम कर लो, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ। अरे ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है क्या? पूरे पूरे आपने मंदिरों का नाश करके रख दिया है, सारे धामों का आपने बैंड में जाकर रख दिया है, बाय जस्ट मेकिंग ए टूरिस्ट स्पॉट। तो टिक मार्क करना है ये। these places are not tick marks, these energy spaces are not tick marks. That's why my life, जो हमारा spiritual retreat होता है, which we take every year, it's not a tick mark कि एक प्रोग्राम सर का करना है वो टिक मार्क करना है। आई ऑलवेज से तुम बिजनेस प्रोग्राम टिक मार्क कर लो, लाइफ वाला प्रोग्राम टिक मार्क कर लो, एहसास टिक मार्क कर लो, बट माई लाइफ इज नॉट टिक मार्क, इट्स एनर्जी प्रोग्राम। एंड दैट्स व्हाई पीपल कम एवरी ईयर, वी हैव पीपल कमिंग अगेन एंड अगेन। वो पहले भी किया, उससे पहले भी किया, पीपल हैव डन इट 3 times 4 times 5 times। इट्स नॉट टिक मार्क। तो बहुत से लोग जो है ना वो 4 धाम करेंगे, टिक मार्क हो गया, हमारा तो हो चुका है। अरे क्या हो गया तुम्हारा? हम्म, ओहो।
से हाँ, चलो, नहीं तो अलग ही, आज मैं अलग ही मूड में हो जाऊंगा। हाँ जी। तो आज तुम लोग, मेरा तुम्हारा असाइनमेंट है तुम सबसे। द असाइनमेंट इज वेरी सिंपल। एनी एस्पेक्ट ऑफ ए कल्चर विच यू वांट टू पास ऑन टू योर चिल्ड्रन, उस कल्चर, उस असाइनमेंट, उस कल्चर के बारे में आप पढ़िए, समझिए, किसी ज्ञानी इंसान से समझिए। गूगल देवता है, गूगल देवी है, जो भी आप बोलते हैं उनको, उनसे सीखो। एंड उसको सरल भाषा में, सिंपल तरीके से अपने बच्चे की एज के हिसाब से उसको बताओ। अब उसको वो मंत्र ना बताओ जो उसको समझ नहीं आ रहे, राइट? वो उसका उच्चारण करने से क्या वाइब्रेशंस होते हैं, शायद वो समझाओगे तो उसको समझ में आएगा। मेक द पर्सन अंडरस्टैंड इन अ लैंग्वेज विच ही और शी विल अंडरस्टैंड, एंड यू विल सी वेरी हाई चांसेस कि वो बच्चा उस चीज को पकड़ लेगा। क्यों पैर छूने हैं? कि जैसे अगर आपने उसको बताया ना कि बेटा, जैसे आप झुकते हो नीचे और आप किसी के पैर छूते हो, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान का हाथ आपके सर पे आ जाता है। यू गेट अ ब्लेसिंग। आप ऐसे खड़े होकर अकड़ में आके ना कोई ब्लेस करेगा आपको। आप जब झुकते हो, और इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि किसी के पैर छूना? तो पैर, देयर आर 10 मोर वेज बाय विच यू कैन एक्सप्लेन व्हाई टचिंग फीट इज सो वेरी ब्यूटीफुल। कि कोई, थोड़ा ना आप छोटे को पैर छूते हो, आप बड़ों के पैर छूते हो, जिनके मन में, जिनके लिए आपके मन में आदर है। एक और कारण हो सकता है पैर छूने का, कि ये वो पैर हैं जिन्होंने चला है, जिन्होंने जिंदगी का बोझ लिया है, इनको नमन करते हैं आओ। ये भी एक तरीका है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज बाय व्हिच यू कैन फाइंड योर ओन रीजंस व्हाई टचिंग फीट इज सो ब्यूटीफुल। फॉर मी इट इज आई नीड ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल अराउंड। तो जब भी कोई मुझे ऐसा दिखता है जिनकी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, तो मैं सीधा मांग लेता हूँ। और मांगने का सिंपल तरीका है, उनके पैर छू लो। इससे बढ़िया तरीका क्या है मांगने का? और जैसे आप किसी के पैर छूते हो, आपके उनका हाथ ऑटोमेटिकली आपके सर पे आ जाता है। कभी देखा आपने? इससे बढ़िया तरीका क्या है मांगने का? किसी की ब्लेसिंग्स, किसी का आशीर्वाद। और बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा बना रहना चाहिए ना अपने सर पे। तो गरीब तो वो लोग हैं जिनके सर पे आशीर्वाद नहीं है। तो अपने बच्चों को गरीब ना बनाओ कि उनको हैंडशेक सिखा दिया लेकिन उनको पैर छूना नहीं सिखाया, तो गरीब रह जाएंगे बच्चे। आशीर्वाद मिलने से रह जाएगा, कमर भी झुकने से रह जाएगी। और थाई लागू नहीं चाहिए, पाए लागू चाहिए। डोंट डोंट हैव दैट स्टाइल ऑफ आजकल तो वाईफाई वाला है, दूर से वाईफाई पाए लागू। हम्म, क्या लिखा है? क्या बोल रहा है ये गणेश सर? आपके वर्ड्स, एक्सप्रेशंस का फटके से ज्यादा अच्छा लगता है एक्शन। चलो, ये इसमें एक काम करो। आई एम गिवन यू द एक्शनेबल्स फॉर दिस वीक, एंड आई वांट टू सी यू विद सम काइंड ऑफ अ शेयरिंग ऑन दैट। लेकिन ये करो यार, हाँ। डोंट डोंट लेट इट बी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और अपने आप कुछ सीख जाएंगे। अपने आप सीखेंगे तो अपने आप सीखे, फिर तो तुम्हारी जरूरत क्या है यार? तुमने क्या रोल प्ले किया? तुम्हारी वजह से कुछ उनके लाइफ में आना चाहिए। एंड देयर इज सो मच ऑफ रिचनेस इन आवर कल्चर। ये अमीरी हमारी रह जाएगी यार, अगर हमारे हमने इसको फ्यूचर जनरेशन को दिया नहीं। ये मोह माया में इतने खो जाते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टी बना, वो पैसा इकट्ठा कर, ये बैंक बैलेंस बना, कि जो बेसिक्स है हम वो देने से चूक जा रहे हैं। बेसिक्स इज द कल्चर, संस्कृति, कुछ जीने के सिद्धांत, कुछ धरोहर, कुछ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो चलती आ रही है, वो आई थिंक देना बड़ा जरूरी है। And last few terms, this is what is happening in the country. We are coming back. We are realigning. We are kind of connecting with our roots. I'm leaving you with this thought, and I wish that we make our families much more culturally aligned. We make ourselves much more culturally rich. हमारे परिवार अच्छे बने, बढ़िया बने, मजबूत बने। एंड उसके लिए हमारा कल्चरली अलाइंड होना, कल्चरली रूटेड होना बड़ा जरूरी है। And I wish that we make our families much more culturally aligned. We make ourselves much more culturally rich. हमारे परिवार अच्छे बने, बढ़िया बने, मजबूत बने। एंड उसके लिए हमारा कल्चरली अलाइंड होना, कल्चरली रूटेड होना बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच। आई विश दैट वी मेक आवर families much more culturally aligned.
We make ourselves much यार ये more कोई लूप आ गया तेरा क्या? culturally rich. ये क्या हुआ, तेरा लूप आ गया। चलिए जी, सो आज के लिए इतना ही। God bless you all, and I'll see you next HM from another beautiful location, because again next HM I'm traveling, but एक और बढ़िया लोकेशन से फिर मैं HM लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? Till time, stay culturally rooted, stay culturally aligned, and ensure the culture is passed on in some way from you to your family, or at least decide तो करो कि ये कैसे जाएगा, ठीक है? थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बड़ा जरूरी काम है। गैजेट्स देना, कोई उनको टूल दे देना बड़ा आसान है, पैसे देना बड़ा आसान है, लेकिन कल्चर डालना मुश्किल है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट।